So today we are going to discuss about the sample paper format. Right? That is what will be there in the sample paper in our class 10 question paper. This is the format which is given in all the books. That is the divided for the chapter wise. You can say chemical substances 26 marks, 23 marks. That is given in all the books. Now what we have to focus about the question paper design, that in section A that will contain objective type questions. In this objective type questions there may be multiple choice, that is MCQs, very short answers, and assertion reason type questions. Question number 1 to 16 will contain MCQs, right? And 17 to 20, you can see here 17 to 20 will contain this assertion type and very short answer. Case studies. Right? Then in section B there will be short answers type question. 6 questions will be there, total carrying 12 marks. Then in section C, 27 to 33, 3 mark questions, 7 questions will be of 3 marks and 3 questions will be of 5 marks, right? So total questions 5 marks 3, 3 marks question 7, 2 mark question 6 and 1 mark question 20, right? So total question number of question will be 36 and marks will be 80. So if we see about chemistry, physics and biophysics, 26 marks, chemistry 26 marks, biology 28 marks, and one more thing, 5 marks of natural resources are added in this, right? Natural resources chapter is there, so this time 5 marks will be added for natural resources. Now dear children, the very important thing, the topics we have to focus with the new typology of CBSE 10th class. Because earlier we were having the 6 questions of 5 marks that I will let you know also in the next slides. So first of all, you should understand that internal choice. So if aggregate I will talk about, internal choice will be approximately 33 marks. In section A, number of internal choices 6, section B के अंदर 2, section C के अंदर 1 and section 2D के अंदर 2 internal choices will be there, right? And very important thing is 17 to 20 contain 5 sub parts each, क्योंकि उसके अंदर दिया था कि 4 into 4 16 marks का होगा, so that's why students are expected to answer any 4 sub parts in these questions, right? After my this webinar I will share the sample paper with you, with which you will better understand what sir has said about this. So when you are sitting at home for preparing the examination, so you have to keep in mind these things कि इस मार्क्स, इस चैप्टर में से इतने मार्क्स का है, 3 मार्क्स के इतने क्वेश्चंस आने हैं, 2 मार्क्स के इतने आने हैं. एंड टुडे आई विल टेल यू किस चैप्टर में से 2 मार्क्स के आएंगे, किस चैप्टर में से 3 मार्क्स के आएंगे, किस चैप्टर में से 5 मार्क्स के आएंगे. Okay, so first of all the chapter is chemical substance, that is nature and behavior. We have already talked about, that is chemistry. It will be of 26 marks. तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. इन दिस चैप्टर टेंटेटिव मार्क्स, मतलब 4 मार्क्स का चैप्टर उसमें से वो बनता है. तो टॉपिक्स क्या क्या है इसमें, जैसे फॉर्मेशन ऑफ गैस, कलर ऑफ कंपाउंड, आयरन ऑक्साइड, लेड आयोडाइड, सिल्वर क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, इन सब में से हमारे पास कुछ ना कुछ आएगा. Yes, ma'am. 17 to 20, that is case studies. So उसके बाद रेस्पिरेशन, ये हमारे पास प्रोसेसेस हैं, एंडोथर्मिक, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है, डिकम्पोजिशन है, रिलेशन ऑफ डिकम्पोजिशन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन है. ये कुछ सैंपल क्वेश्चंस बताए हैं मैंने यहाँ पे कि व्हाई चिप्स आर केप्ट इन नाइट्रोजन फिल्ड पैकेट, मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्निंग दीस, राइट? और इस चैप्टर में से कोई भी डिलीशन नहीं है ड्यू टू कोविड-19. टाइपोलॉजी में क्या होगा कि वेरी शॉर्ट आंसर्स इसमें से आ सकते हैं, रीजनिंग असर्शन आ सकते हैं और शॉर्ट आंसर सेकंड टाइप आ सकते हैं, दैट इज 3 मार्क्स वाला.
राइट। शॉर्ट आंसर 1 में 2 मार्क्स के होंगे और शॉर्ट आंसर 2 मीन सेकंड टाइप है तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है इसमें। देन एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट में से टेंटेटिव मार्क्स 6 हैं। ये हमारे टॉपिक है, इसमें से भी कोई डेलीशन नहीं है, इसमें वेरी शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर। मोस्ट प्रोबेबली वी आर एक्सपेक्टिंग दिस कि इसमें से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ही आएगा एक, राइट। और ये हमारे पास टॉपिक्स हैं, ये हमने जो डिस्कस किए हैं इस चैप्टर के अंदर। पीएच की इंपॉर्टेंस, सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक, डिफिकल्ट क्यों हो जाता है व्हेन एसिड रेन फ्लो इनटू द रिवर, व्हाई एसिड इज एडेड इनटू द वाटर, केमिकल फार्मूला और केमिकल नेम ऑफ सॉल्ट जो टेबल दे रखे हैं हमें, वो इजी है, हमें पढ़ने भी हैं। तो इस तरीके से ये चैप्टर है हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट। देन वी हैव मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो टेबल वाला क्वेश्चन है टेंटेटिव मार्क्स 7 और ये टेबल वाला क्वेश्चन यू हैव टू जस्ट ग्रैब इट, डोंट मिस दैट क्वेश्चन। जितने भी टेबल वाले फॉर्मेशन वाले ये क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको अच्छे से करने हैं। रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम फाइंड आउट करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज देख के कि कौन सी रिएक्टिव है, कौन सी डिस्प्लेस करेगी, कौन सी नहीं करेगी, राइट। सो contextualized क्वेश्चन XYZ आयनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं अप टू पेज 49, एनसीईआरटी का पेज नंबर 49 है, वहां तक आपने करना है। डिलीशन इसमें मेटलर्जिकल प्रोसेस, कोरेजन एंड प्रिवेंशन, ये इसमें डिलीटेड टॉपिक्स हैं। क्वेश्चंस की टाइपोलॉजी क्या रहेगी इसमें, वी आर एक्सपेक्टिंग कि शॉर्ट आंसर एक आएगा 2 मार्क्स का और एक आएगा 3 मार्क्स का, राइट। तो इस तरीके से इस चैप्टर में से भी जो हमारे पास फॉर्मेट है क्वेश्चन आंसर का वो भी ऐसे बनेगा। देन द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। टेंटेटिव मार्क्स इसमें से 3 रखे गए हैं। इसमें से मुझे तो यही लगता है कि एक वेरी शॉर्ट आंसर आएगा और एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का, राइट, बिकॉज इसमें से बहुत सारा सिलेबस है वो डिलीट हो चुका है। जैसे नोमेनक्लेचर इज डिलीटेड, नाम बताने हैं वो खत्म कर दिया इन्होंने। फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, इथाइल अल्कोहल जो इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज थी वो भी डिलीटेड है इस बार, राइट। तो अप टू पेज 67 आपने एनसीईआरटी तक करना है। बहुत ही सिंपल से टॉपिक रह गए हैं पीछे इसके कि व्हाई कार्बन डू नॉट मेक, दैट्स व्हाई इट्स ऑफ 3 मार्क्स। होमोलोगस सीरीज है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, यस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स अकॉर्डिंग टू मी यू हैव टू बी मोर फोकस्ड, क्योंकि किसी ना किसी की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर 101% आए, राइट। बॉन्डिंग, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इन दिस, कितनी बॉन्डिंग है अल्केन अल्कीन अल्काइन वाली। देन द स्कोरिंग चैप्टर दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसमें से कुछ भी डिलीटेड नहीं है। टेंटेटिव मार्क्स 7 है इसके। इसमें मेंडली पीरियोडिक टेबल मेरिट्स एंड डीमेरिट्स अच्छे से कीजिएगा क्योंकि 80% चांसेस है इनके आने के। उसके बाद जो कंपैरिजन है एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक साइज, वैलेंसी, मेटालिक कैरेक्टर, ग्रुप्स एंड पीरियड्स, everything that you have to just go through this. Very easy chapter and very scoring chapter. टाइपोलॉजीज की वेरी शॉर्ट आंसर में रीजनिंग और असर्शन वाला इसमें से 101% आएगा, राइट। और शॉर्ट आंसर 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से सेट हो सकता है पैसेज बेस्ड, कि पैसेज विल बी गिवन एंड यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर्स। देन वी हैव फोकस टॉपिक्स ऑफ साइंस, अगेन वर्ड ऑफ लिविंग स्टार्टेड विद बायो। तो बायो में 23 मार्क्स का हमारे पास बैठता है टोटल। और लाइफ प्रोसेसेस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है, इजी है, क्योंकि ये सारी चीजें जो इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करते हैं लाइफ प्रोसेसेस वो हमने मतलब 7th 8th में स्टडी करने के बाद अब हम 10th में एक साथ उनको थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में लर्न करते हैं। तो टेंटेटिव मार्क्स इस चैप्टर के 12 हैं। टॉपिक्स इसमें से ऑलमोस्ट सारे ही हैं। इसके जो क्वेश्चंस हैं वेरी शॉर्ट आंसर्स, रीजनिंग और असर्शन हो सकता है, और शॉर्ट आंसर जो 3 मार्क्स वाले हैं वो पैसेज बेस्ड भी आ सकते हैं। लॉन्ग आंसर की एक्सपेक्टेशन मत कीजिएगा इस चैप्टर में। चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नो डिलीशन, टेंटेटिव मार्क्स 9। इसमें से टॉपिक्स हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन शोन इन सम प्लांट्स,
difference between pollination and fertilization, diagram of flower, sorry, that is reproduction, control and coordination तो deleted ही है हमारा सारा, ये we are discussing about how do organism reproduce, that is tentative marks 9. तो इसके अंदर रिप्रोडक्शन के अंदर सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये टर्म्स में से 101% आई एम श्योर अबाउट दिस, इसमें से कुछ ना कुछ वहां आएगा चैप्टर में, तो इसको अच्छे से कीजिएगा। देन वी हैव हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के अंदर टेंटेटिव मार्क्स 3 हैं, क्योंकि इसमें बेसिक कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन डिलीट हो चुका है, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है आगे, राइट। और अप टू पेज 147 पेज ब्लू इन टेक्स्ट तक आपको करना है इस चैप्टर को। तो इसमें वेरी शॉर्ट आंसर है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का एक ही क्वेश्चन सेटअप बैठता है 3 मार्क्स का, और वो आपको पता है कि कौन सा बैठता है, वो मेंडल एक्सपेरिमेंट्स, 90% चांसेस हैं कि मेंडल एक्सपेरिमेंट्स में से ही बैठेगा सेटअप उसमें। Then we have physics, natural phenomena, light, very important chapter, tentative marks 8, न्यूमेरिकल एक मिरर फॉर्मूले का बनता ही है इसमें बिना किसी डाउट के। इमेज फॉर्मेशन आ सकती है, इमेज फॉर्मेशन के चांसेस है, क्योंकि ड्रॉ द इमेज फॉर्मेशन कैसी बनेगी कैसी नहीं, तो इसमें से वेरी शॉर्ट आंसर और शॉर्ट आंसर्स पैसेज बेस्ड। डिलीशन इसमें कोई नहीं है। मैग्निफिकेशन के ऊपर इसमें चैप्टर आ सकता है 101% कि मैग्निफिकेशन क्या होती है, किसने मिरर की इसकी मैग्निफिकेशन 1 है तो किस टाइप की इमेज बनेगी, या रियल इमेज बन रही है तो मैग्निफिकेशन क्या होगी, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आ सकता है। देन वी हैव ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में से 4 मार्क्स का सेटअप बैठता है, टेंटेटिव मार्क्स हैं ये हमारे, इसमें से भी ऑलमोस्ट ऑल है फ्रॉम पेज 191 टू टिल एंड, वो हमारे पास नहीं है इसके अंदर। तो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है डिफेक्ट्स ऑफ विजन, जो हमने किया है डिफेक्ट्स ऑफ विजन, और बहुत ही सिंपल है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर कुछ भी क्वेश्चंस पूछा जाए तो वो आप बता सकते हैं इजीली कि सन अपीयर रेड एट सनराइज एंड सनसेट, वो क्यों है, रेड कलर लाइट ट्रैफिक सिग्नल में क्यों यूज होती है, रेड कलर लाइट डेंजर सिग्नल के लिए यूज क्यों होती है, राइट, और स्काई का कलर ब्लू क्यों है, तो ये सारे क्वेश्चंस इसके अंदर सेटअप करना। तो डिलीशन हमारे पास है फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स इन विजन, इसमें से सॉरी हाँ इस बार डिलीटेड है, एप्लीकेशन ऑफ लेंस रेमेडी ये डिलीटेड है हमारे पास। तो हमें सिर्फ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, राइट, इन चीजों पे ही फोकस करना है। डिफेक्ट्स ऑफ विजन वाला हमारा कट आउट है इस बार, तो हमें उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। देन वी हैव इफेक्ट ऑफ करंट। इफेक्ट ऑफ करंट 14 मार्क्स का है टोटल, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक और दोनों ही आएंगे हमारे पास। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी है हमारे पास टेंटेटिव मार्क्स 6, डिलीशन कुछ भी नहीं है, न्यूमेरिकल्स 100% इस चैप्टर में से होगा, राइट। रेजिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चंस 90% आएगा कि व्हाट इज रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ सिंपल है, इसमें करंट की डेफिनेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, इलेक्ट्रिक पावर है, और रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल के न्यूमेरिकल तो है ही है, राइट। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वो वायर को स्ट्रेच करके डबल करके जो फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं इस चैप्टर के अंदर कि हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द लेंथ और एरिया, तो उनके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि अगर रेजिस्टेंस का पूछा जाए, राइट, वो आपको अच्छे से करना है, इसमें उस पर ज्यादा फोकस रखिएगा, देन इट विल बी इजी फॉर यू। देन वी हैव मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जैसा कि मैंने बोला था कि टेंटेटिव मार्क्स 6 है इसके, इसमें कुछ डिलीशन है हमारे पास, डिलीशन के अंदर तब तो पेज नंबर 235 ही करना है हमने, उसके बाद वाला नहीं करना है, राइट।
तो करेक्ट फील्ड पैटर्न ऑफ फील्ड लाइंस है, नेम द पोल ऑफ मैग्नेट आ सकता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ड्राइंग आ सकती है आपको कि एक स्ट्रेट कंडक्टर है तो उसको ड्रॉ करके बताइए कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, राइट। फिजिकल क्वांटिटी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल को अच्छे से स्टडी करना है आपको, राइट। सोलेनोइड के ऊपर के स्ट्रेंथ ऑफ सोलेनोइड किस पे डिपेंड करती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कहता है मैक्सिमम कंडक्टर में लाइज कहां करता है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। डिलीशन, ये हमारे पास सारा डिलीशन है, एसी डीसी, डायरेक्ट करंट जनरेटर, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, so these all topics are to be deleted, so no need to focus on that. Then I told you that 5 marks का natural resources आएगा इस बार। ऑल टॉपिक्स जो है सोर्सेज ऑफ एनर्जी के वो तो डिलीटेड ही हैं, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज में अब हमारे पास इन्वायरमेंट बचता है, तो इन्वायरमेंट के ऊपर हमें कुछ भी आ सकता है, डिलीशन कुछ भी नहीं है इसमें, राइट। बैक्टीरिया, फंजाई, ये क्या चीजें हैं, परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी है, बायो मैग्निफिकेशन इंपॉर्टेंट है इसमें, राइट। एसिड रेन जनरल चीजें हैं, ओजोन, कंट्रीब्यूशन ऑफ गैसेस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, वो क्या कंट्रीब्यूशन करती हैं, कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट का, ये सारी जनरल चीजें हैं जो इजीली हम कर सकते हैं, राइट। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी भी ट्रॉफिक लेवल में पूछा जा सकता है कि कैसे है। जो टाइपोलॉजी है वो क्वेश्चंस की वो वेरी शॉर्ट आंसर, रीजनिंग और रिजर्वेशन में हो सकता है, और 3 मार्क का क्वेश्चन भी सेटअप हो सकता है इस चैप्टर में। एंड दिस इज फॉर इंटरनल क्वेश्चन, इंटरनल असेसमेंट जो हमारी मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, तो ये भी आपकी हो सकती है, राइट। तो इसमें लॉन्ग आंसर टाइपोलॉजी क्वेश्चंस की होगी, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजनिंग होगी, वेरी शॉर्ट आंसर में ही आगे वो शॉर्ट आंसर 1 फर्स्ट टाइप जो होती है वो 2 मार्क्स की है, शॉर्ट आंसर 3 मार्क्स की सेकंड टाइप है, लॉन्ग आंसर 5 मार्क्स के हैं, पैसेज बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड, सोर्स बेस्ड, इंटीग्रेटेड असेसमेंट बेस्ड, ये सारे हमारे और 33% क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको इंटरनल चॉइस प्रोवाइडेड होगी, राइट। बाकी इसके अलावा कोई इंटरनल चॉइस हमारे पास नहीं होगी, राइट। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द टाइपोलॉजी ऑफ द क्वेश्चन पेपर ऑफ द सैंपल, लाइक फॉर कमिंग मार्च 2021. So I hope this will be helpful for you. Thank you very much.